Hi, Ishwari. Good evening. Am I audible? Can you please let me know? Is the voice loud and clear? Ishwari, can you hear me? Yeah? Okay. But you will wait for 1 or 2 more minutes for others to join. Could you also just let everyone know that we are live and then we'll get started because nobody else is here.
Okay, let's get started. I'm not sure why others are not here, but we'll begin, okay? Hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Sorry for that. Yeah. So let's get started. Now today's session is going to be on the organized and unorganized sector of employment. As you guys know, we are doing the chapter of the sectors of Indian economy, and this is the third session. We have done two other sessions before this where we have done first of all the discussion on the what are the various sectors of economy, and then we have also done discussion over what how the changes and what changes have actually come in over a period of time in these sectors. We have done a comparison of these sectors because as the time progresses, there are development, there are changes, there are technological advancements, which leads to, of course, a place where you also see it brings a reflection and changes in the pattern in terms of employment, in terms of production, in terms of the amount that is produced, right? So we've done all of that. Now today we're going to talk about the organized and the unorganized sector of the economy. So let's begin. Please let your friends know as well that the session is here and we have gotten started so that they do not miss on the discussion, and share the video with your friends. Let's begin. So we'll start with a quick introduction. Hi everyone, my name is Ankana and I am your expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 9 years. It's actually 10 now. In both offline and online teaching, when I've taught the students for CBSE and ICSE, and I've done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. Now we'll start with a quick recap of what we have done before. You guys just let me know if you're aware about the pre-class activities or not, whether you've done it or not. Just let me know in the chat, and we'll meanwhile keep finishing our recap. So what we have done before this in the chapter is, as I told you, that we saw the historical changes that have happened in the sector. First of all, we understood and discovered that there are three sectors, which is primary, secondary, and tertiary. In the previous session, I also discussed and clarified for you what quaternary sector is. It is basically when a person, any kind of job where you are actually kind of utilizing your intellect, you're utilizing your knowledge, all those kind of jobs. For example, investment banking, वैसे उसको हम tertiary sector में भी segregate कर सकते हैं, because that is where you are providing service, utilizing your intellect, utilizing your knowledge, and then doing some kind of job is basically providing service until unless you're doing some kind of production of goods. But whenever production of goods is involved, it automatically becomes primary or secondary, because either you're interacting with the nature or you're doing some kind of transformation of the products. पर अगर हम ज़्यादा और स्पेसिफिकेशन में जाना चाहें और उसको बेटर तरीके से डिफाइन करना चाहें कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जैसे आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, विच विल ब्रिंग इन मोर रिटर्न एटसेट्रा. सो दैट इज वेयर यूर एग्जैक्टली यूजिंग योर नॉलेज, you're exactly using your wit, you're exactly using the intellect that you have over a period of time. The experience comes into hand, it becomes it comes into use, and that's what becomes handy. So that we have done. Then we saw that historically we have seen that when we got independence, the primary sector which was there is what employed most of the people in India specifically, and this is the pattern that we observe anywhere where the nation which is underdeveloped or has just started developing will majorly have people employed in the primary sector, and majority of production would be happening over there, and maximum your contribution also will be done there itself in terms of GDP. But then as it starts doing the development, it starts moving towards technological advancement and having progress and evolution, then it will automatically start creating things, producing things which is a level ahead. It will start producing things which is manufacturing sector. वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा, और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, और जब आप देखते हो कि
डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ कोई मूव कर रहा है या डेवलप्ड नेशन है, द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन is in the service sector, majority of employment is in the service sector, and hence majority of contribution will also be in the service sector. This is the historical change that we saw. We also saw that from 1973 to 74 के पीरियड का जब हम ग्राफ देखते हैं इंडिया में, and when we look at the graph of 2013 and 14 as such particularly, there's development in all the sectors, agriculture, secondary and tertiary, but the biggest development that has happened is in the sector of tertiary, okay, service sector. However, it is not exactly replicated by the number of employment also. Now why is that? We understood by reflecting the importance of tertiary sector कि production वहां ज्यादा क्यों होता है, तो हमने कुछ basic reasons देखे, हमने देखा कि basic services like education and health and banking and insurance and transportation, communication is all served by the tertiary sector. So as people start growing, the basic needs are always there, and when the population is moving a little ahead, it will require the basic services. तो सबसे पहले इस वजह से डेवलपमेंट हुई. फिर हमने समझा कि because of the interdependencies between the various industries, ever if primary and secondary sector are growing, it will increase the demand of transportation, communication, banking, insurance, right? So it will automatically lead to the development of tertiary sector also. Then when the population is developing, becoming prosperous with advancement, primary sector will get modernized, there will be more prosperous farmers, there will be more manufacturing, hence more trading, right? There will be more employment in that sector, people will become again more prosperous as industrialization, when the industrial revolution had come, तभी हमने देखा कि मिडिल क्लास, जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा था, उसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, राइट? सो वी अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट इट डायरेक्टली लीड्स टू अ प्लेस वेयर पीपल स्टार्ट अर्निंग मोर एंड कांस्टेंट कंसिस्टेंट मनी. इनकम जो है स्टैटिक मतलब कंसिस्टेंट हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो ये लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करती है. लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होती है तो डिमांड इंप्रूव होती है, बेटर होती है, कंजम्पशन बेटर होगा. इफ आई स्टार्ट अर्निंग बेटर एंड कंसिस्टेंटली, आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, ईटिंग आउट, शॉपिंग, यानी कि मैं सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम करने लग जाऊंगी. सो दैट इज द थर्ड रीजन दैट व्हेन इनकम लेवल राइजेस, पीपल विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इट इन द सोसाइटी by consuming more services. And the final one was that there has been certain additions in terms of new services, technological development, especially the information technology and communication sector, internet ka boom, industrial revolution, what do you say, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नए सर्विसेज क्रिएट कर रही हैं. उसमें हाई स्किल्ड लोग काम करते हैं और वो हाई स्किल्ड लोग जो हैं वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन इसमें चैलेंज यही है कि ये जो कुछ लोग हैं हाई स्किल वाले हु आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर वेरी फ्यू. तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी लिमिटेड है. तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट अभी भी लिमिटेड है, तो अभी एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ हमने लास्ट सेशन में एक्चुअली देखा नहीं था, वो हम आज करेंगे. और फिर हम उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट और अलग अलग स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज कि जब प्रोडक्शन कहीं से ज्यादा होता है, आप नेचुरली प्रिज्यूम करते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मस्ट बी एम्प्लॉयड हियर, और एटलीस्ट क्लोज टू सम मेजॉरिटी, राइट? देयर कैन नॉट एंड शुड नॉट बी अ ह्यूज गैप, बट दैट इज व्हाट विल फाइंड आउट टुडे, दैट देयर डज exist like a huge gap. ठीक है, so let's begin. Okay. Now a quick reminder, we have launched your new batch on 20th of May, which is the second batch for 10th standard. The first one was launched on 12th of April. Just in case if you have still not joined this batch, 20th May is the ideal place for you to get started. अभी यहाँ पे पहले 3 दिन आपको भर करके free trial मिल रहा है, but as soon as these batches start getting further older बच्चे, the trial system will go away because there will be no point in joining the session way later, right? आपको बहुत सारे live sessions every day, Monday to Friday आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, यानी कि इट विल अकाउंट टू समवॉट 800 आवर्स ऑफ लाइव सेशन रफली, प्लस माइनस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मिड टर्म्स, फाइनल रिविजन्स, ये सब कुछ हम आपके लिए कराने वाले हैं. डिटेल टेस्ट कराने वाले हैं, टेस्ट में बिहेवियरल पैटर्न एनालाइज करेंगे, क्योंकि स्कोर तो हम खुद से भी टेस्ट असेस करके ले सकते हैं, बट अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना वो डिफिकल्ट होता है. आपको ई बुक्स की प्रोविजन मिलेगी, लर्निंग वीडियोस मिलेंगे, कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे. 10th स्टैंडर्ड में
practice is the key. जितने ज्यादा PYQs देखोगे आप, वो टेस्ट आपके लिए पहले से क्रिएटेड है Imbibe के एप्लीकेशन पे, बट more and more amount of test and practice questions that you will do, the more exposure you'll get, the better will be your answer writing skill, approach to answering the question and assessing yourself, and this is what will mark the difference between your preparation and others. ठीक है, सो यू कैन इवन प्लान, मतलब जैसे स्ट्रैटेजाइजिंग जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए, बट स्ट्रैटेजाइजिंग विल बिकम वेरी वेरी इजी बिकॉज वी विल क्रिएट द प्लान फॉर यू. आप बता दो आपको किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में कितने दिनों में आपको इंप्रूव करना है. अगर मान लो नेशनलिज्म इन इंडिया में यू स्ट्रगलिंग अ लॉट, rise of nationalism in Europe may you're struggling a lot, then in such cases what you do, you basically identify the topic, then you tell that okay, right now I'm scoring a C1 or maybe like a B2, I want to reach up to A2, A1, and I want to do it in the next 25 days where I just have 30 minutes to dedicate every day in terms of practicing. The plan will get created accordingly. You'll get the reading material, reading resources, and your practices and tests and everything scheduled as per your requirements. So it will be a very personalized plan for your self-study, because सेल्फ स्टडी कर लेते हैं बट कैसे स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से करना है वो पता नहीं होता है. और भैया जब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आज के सेशन में पता चलेगा, तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में कितनी ज्यादा होगी वो आपको अचीव जर्नी एक्सप्लोर करके पता चल जाएगा. आप चाहो तो पहले 3 दिन के ट्रायल पीरियड में एक छोटे से टॉपिक के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. सो द प्लान कम्स एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट, राइट? And if you're wondering where do you find it in the app, आपको बच्चे अलग अलग ऑप्शन आता है जब आप एप्लीकेशन खोलते हो Imbibe का. यू फाइंड द होम, यू फाइंड द लर्न टैब, प्रैक्टिस टैब, टीच टेस्ट का टैब, आपको अलग से एक अचीव टैब मिलता है. वहां पे जाकर के आप अपनी जर्नी जो है क्रिएट कर सकते हो. यू विल हैव टू फर्स्ट टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको सीधा तो मेडिसिन लिख कर नहीं देते कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें स्टमक एक हो रहा है, ये लो 4 मेडिसिन. They have to first identify the root cause of why that is happening. So they'll maybe assess you, they'll prescribe some tests, some blood tests, some maybe scans, and उसके result पे it is decided that what is the right approach of medication and the line of treatment that should be adopted for you. Similarly, जब आपको आपके लिए आपका journey, achieve journey define करना होता है, तो what you need to do is, what you would be required to do is first take a diagnostic test. Let me in fact quickly show it to you. Where can you find it? Just give me a quick second. So when you open Imbibe, ये देखो home, learn, practice, test and achieve. This is exactly achieve. यहाँ पे जाकर के आप अपने diagnostic tests को ले सकते हो. You have to start achieving now. So आप पहले test लोगे and then you can decide कि आप क्या करना चाहते हो. How can you maximize your skill? ठीक है, ये सब सारे features धीरे धीरे add होने वाले हैं. ये मेरे example के लिए मैंने एक test लिया था, उसमें D है. तो यहाँ पे अगर मुझे A2 score करना है तो I will start my achieve journey from here and then I will select social science. आप चाहो तो मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. आपकी मर्जी है कि आप सारे चैप्टर्स में वो जर्नी डिसाइड करना चाहते हो. दिस इज वेरी गुड फॉर हैविंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग. मिड टर्म का प्लान अभी से कैसे क्या स्केड्यूल फॉलो करना है यू कैन सेलेक्ट. या फिर मान लो अभी हम कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मुझे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जानना है कि क्या होगा कैसे होगा. ये मैंने कर दिया. अब मैं एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दूंगी, मैं देखूंगी मैं किस लेवल पे हूं. तो आप क्या करो, जिन चैप्टर्स के साथ आप स्ट्रगल करते हो आप उनके साथ कर सकते हो. टेस्ट दो, देन आप अपने टारगेट्स प्लान करोगे कितने दिन में करना है, क्या करना है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड फॉर यू एंड यू वुडंट हैव टू वरी एट ऑल, राइट? यू विल बी सुपर सिंपली सॉर्टेड. So that is all that you need to do. So all of this is coming at a price of just $4.99 per month. अगर आप annual subscription लेते हो, we keep on having offers every now and then. For example, 2nd of June तक एक offer चल रहा है जहाँ पे heat को बीट करने के लिए हम समर 25 कोड लगा रहे हैं, जहां से आपको 25% ऑफ मिल जा रहा है पूरे साल के प्लान पे. आपको इस पे अचीव 15 का कोड लगाना है टिल 2nd ओनली, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल. तो आपके 3 मंथ के प्लान पे भी आपको 15% ऑफ मिल जाएगा. द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज ऑल सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड एग्जाम्स एंड एक्सेस, विच मीन्स एवरीथिंग दैट Imbibe हैज टू ऑफर आप इसी पैसों में अवेल कर सकते हो. जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो सिर्फ 10 स्टैंडर्ड की नहीं होती है, आपकी सब्सक्रिप्शन होती है
इम्बाइब के प्लेटफॉर्म की, यानी कि आपको इम्बाइब लेंस, वर्चुअल ऐप एक्सपेरिमेंट, पेरेंट्स के लिए ऐप, ब्रेन एप्स, लर्निंग आउटकम्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, या फिर पूरे इम्बाइब लर्न के ब्यूटिफुली 3D क्रिएटेड वीडियोस, ये सब मिलते हैं। बट सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के नहीं, सारी क्लासेस के, चाहे वो एनडीए हो, एसएससी हो, या फिर जेई हो, नीट हो, यानी कि आपकी कोई सिबलिंग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप शेयर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज हाउ सिंपल, प्लेन एंड सिंपल इट इज. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू लेट यू नो. नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन. एज आई वाज टेलिंग यू, प्री क्लास activities are certain reading materials and videos that we share before the session, so that you're already a bit prepared before entering into the live class about what is going to be taught, and you have a read about it. It helps you have an enduring and a way more deeper understanding of the concepts that is being done in the live sessions. Not just that, क्लास के बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाते हैं. तो होता क्या है, थोड़े थोड़े दौरान पे आप एक टॉपिक को पहले थोड़ा सा पढ़ते हो, फिर एकदम डिटेल में लाइव क्लास के साथ समझते हो, फिर उस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो. तो आपकी समझ लो 70% प्रिपरेशन जो है आउट ऑफ द टोटल फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव सिर्फ इस लाइव क्लास के साथ आगे पीछे की एक्टिविटी करके हो जा रही है. आप जब उसको अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ इस एक्टिविटी के बेसिस पे असेस करोगे लाइव क्लास के बाद, उतने में ही आपको दिखेगा कि आपकी तैयारी कितनी सॉलिड हो चुकी है. और एग्जाम के बाद ना, मतलब एग्जाम के दौरान आपको सिर्फ बेसिक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा आप स्कूल में भी पढ़ते हो, कभी कभार सेल्फ स्टडी भी करोगे, तो एक चीज को जितनी बार पढ़ो उतनी ज्यादा दिमाग में अच्छे से वो आ जाती है. एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ योर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी, राइट. चल, तो हम बात करें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की. वी हैव फिनिश्ड द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंपैरिजन ऑफ द सेक्टर्स. आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. Now, under this, the topics that we'll be doing is, first we will understand what is organized sector, what is unorganized sector, and how can protection of workers in the unorganized sector be done, and also why do they need protection. वो आज के सेशन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है. Okay, now if you want to bring your books to life, imbibe lens is the way. Black and white किताबें पढ़ पढ़ के हम सब हो जाते हैं बोर, है ना. यार सिर्फ पढ़ने से मजा नहीं आता है, कई बार कुछ चीजों को आप और ज्यादा डेप्थ में समझना चाहते हो, या कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन होती है. वी एंड अप गूगलिंग एंड यूट्यूबिंग एंड व्हाट नॉट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. समटाइम्स वी डोंट फाइंड द रेलेवेंट वीडियो, समटाइम्स वी वॉच मल्टीपल वीडियोस. गिव इट अ ट्राई विद imbibe lens, राइट. आपको क्या होगा, स्कैन हो जाएगा अपने आप टेक्स्ट, जो कीवर्ड्स है वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे. You just have to pick the word that you want to learn more about, the concept that you want to learn more about, and everything that is in and around that. चाहे वो 3D images हो, 3D learning videos हो, वो अपने आप सजेशन में आ जाती हैं. ये एक्सपीरियंस बहुत ही आसान हो जाता है भाई. जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे. दैट इज योर बिगेस्ट वेपन. Now you guys know the drill, so we'll follow the same process. We'll start with 3 questions from the previous topics. So here is the very first question. Which sector has emerged as the largest producing sector in India in recent years? Primary, secondary, tertiary, quaternary. ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है. और देखो यहाँ पे भी क्वार्टनरी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि क्वार्टनरी का मतलब क्या होता है. फर्स्ट 3 डेज बच्चे फ्री ट्रायल होता है. फर्स्ट 3 डेज अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है तो 3 दिन तक आप ट्राई कर सकते हो, सारी क्लासेस सब कुछ अवेल करके, सारी सर्विसेज अवेल करके. फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है. Okay,
तो हमने अभी देखा कि जब हम अंडर डेवलपिंग, थोड़ा हम ज्यादा डेवलप नहीं थे जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की थी। इंडिपेंडेंस के बाद हम धीरे धीरे अपने सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ, बेटर जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो हम डेवलपिंग की तरफ आ जाते हैं। अब हम धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वो होती है टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। So everyone, very great if you got it right. Moving on to the next question. What do you mean by underemployment? Underemployment का क्या मतलब हो सकता है? When workers are fully employed but they do not have job security. When they are employed, unemployed but actively looking for work. Workers are, apparently working but not fully utilized. Or when workers are employed in the informal sector without benefits. अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबली क्या हो सकता है, तो इसको हम आज और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। होता क्या है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के पास काम नहीं है, वो काम करना चाहता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट विच मीन्स यू आर एम्प्लॉयड बट नॉट कंप्लीटली टू योर पोटेंशियल। सो व्हेन यू आर वर्किंग बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज, जितना काम आप कर सकते हो आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो। Why are only final goods and services counted in measuring of production? GDP जो है उसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स क्यों लेते हैं, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया था जीडीपी के दौरान। क्योंकि ये हाईएस्ट मार्केट वैल्यू होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इजियर टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड। Why do we not take in account just the other goods and only the final goods when we are doing the calculation of GDP? ओके, प्री सिंपल बच्चे, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, वो सामान है जो अभी बीच में ही है, सीधा कंज्यूमर के पास नहीं गया है। कंज्यूमर के पास नहीं गया है तो जिसके भी पास गया है वो उसकी वैल्यू ऑलरेडी अक्यूमुलेट करके, अकोमोडेट करके चल रहा है इन द फाइनल प्राइस। तो अगर आप उसको उस स्टेज पे भी गिन रहे हो, फिर फाइनल प्राइस पे भी गिन रहे हो, तो वो गलत प्रोजेक्शन देगा, क्योंकि आप उसे 2 बार डबल काउंट कर लोगे। ठीक है, चलो, कभी ये सोचा है कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हो? मुझे बताना जरूर कमेंट में कि आप क्या करना चाहते हो। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? विच सेक्टर वुड यू प्रोबेबली वांट टू वर्क इन, और वेयर डज योर ड्रीम टेक यू और विल पॉसिबली एम्प्लॉय यू? बट एनीवेज, जो भी आप इकोनॉमिक सेक्टर चुनते हो, आप हो सकता है फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो करना चाहो, ठीक है। या फिर हो सकता है आप टीचर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, आप किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहो, फार्मिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ काम करना चाहो, व्हाटएवर यू चूज, ठीक है। क्या होते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? आपके लिए नौकरी एक अच्छी जर्नी कैसे बन सकती है वो समझेंगे हम, बिकॉज इट विल ग्रेटली डिफाइन another sector which is unorganized or organized sector of economy. तो हमने पैटर्न के बेसिस पे एक डिवीजन कर ली है जॉब्स की, है ना। पैटर्न क्या है उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन कर ली है जॉब्स की, कि अच्छा अगर नेचर से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी में, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सेकेंडरी में, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो टर्शरी में। बट फर्दर एंड अबव एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो एग्जिस्ट्स अनदर डिफरेंशिएशन विच इज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। विल लर्न मोर अबाउट दैट टुडे एंड वे मोर इन डिटेल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट विल फर्स्ट स्टार्ट विद एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ
ग्राफ देखा था जहां पे हम 1973 से 74 का प्रोडक्शन चेंज देख रहे थे, जहां पे हमने देखा था कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कितना चेंज आया। और ये हमारा वो ग्राफ था जो हमें दिखा रहा है कि पिछले 40 सालों में ये चेंज आया है। ठीक है, जीडीपी में जो तीनों सेक्टर्स के शेयर है वो बढ़े तो है, लेकिन ये चेंजेस जो है शेयर में जीडीपी के एक सिमिलर शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं लेकर आते। तो देखो जीडीपी में टर्शरी सेक्टर की कितनी इंक्रीमेंट हो गई, कितना ज्यादा बढ़ गया, ये भी बहुत बढ़ गया सेकेंडरी सेक्टर, इनफैक्ट प्राइमरी सेक्टर में भी इंक्रीज आया, बट सबसे ज्यादा किसमें आया, टर्शरी में आया। तो अगर मैं इसके बेसिस पे तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा लोग किस में काम करते होंगे, बिकॉज वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग दिस, हो सकता है कि आपको इस बात की क्लैरिटी ना हो, या मतलब ऑलरेडी समझ आ चुका हो कि मैम किस बारे में बात कर रही हैं, किस चीज के बारे में पूछ रही हैं। बट इन जनरल गाइज, जब हम अगर किसी भी ग्राफ को ऐसे देखते हैं और हम देखते हैं कि अरे टर्शरी से देखो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रहा है इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो हम नेचुरली क्या प्रेज्यूम कर लेते हैं, हम नेचुरली यही प्रेज्यूम करेंगे या यही एक्सपेक्टेशन बिल्ड करेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर इससे आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ज्यादातर लोग, अगर पूरे नहीं भी, कि अगर मान लो 60% प्रोडक्शन जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रहा है, तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग दैट समवेयर 35 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन should at least be in the tertiary sector, because I understand कि tertiary sector में कुछ बहुत high skilled लोग चाहिए होते होंगे। ठीक है, there must be some of the people, one second, there must be some of the people who must be like most of the people who must be employed in this sector, maybe if not directly proportional to the amount of production that is being done in this sector। ठीक है, okay, तो अब हम जब ये देख रहे हैं तो हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ भी। जब बेटा आप एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ देखते हो ना, तो एम्प्लॉयमेंट वाले ग्राफ में आप क्या चेंज पाओगे, आप ये चेंज पाओगे कि आपका जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, सॉरी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट चल रही है इन टर्म्स ऑफ शेयर इन द सेक्टर्स, तो 1977 से 78 का और 2017 से 18 का देखते हैं। अगेन 40 इयर्स का गैप पे हम देखते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट इन 1977 से 78 में, actually wait one second, what I'm going to do is I'm going to draw a table. So here we will have the year of which we are doing the discussion. This is the primary sector ka segregation. This is secondary sector and this is the tertiary sector. ठीक है, तो let me just divide it with one more line. Now when you look of the data from 1917 to 1978 and that of 2017 to 2018, what difference do I find? निष्ठा एक बार वापस रिफ्रेश कर लो, because I think it's clear for everyone else. Can everyone else let me know if I'm properly audible or not? So there were 71% people employed in the primary sector in the year of 1977, 11% in secondary sector and 18% in the tertiary sector. ठीक है, वहीं पे अगर हम ये 2017 की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो डिपेंडेंसी है प्राइमरी सेक्टर पे काफी कम हो गई है ना, वेरी वेरी क्लोज टू योर 40% ऑफ डिक्रीज, बट ये 25% है और हमारा 31% जो है वो टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन मोर देन 60%, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, मोर देन 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है, और मात्र 30% लोग, ओनली 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। सो दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन इन आवर हेड कि डेवलपमेंट तो हर जगह हुई है ना, डेवलपमेंट हैपेंड एवरीवेयर, देन व्हाई दिस डिफरेंस?
Clearly, we saw a decline in the amount of employment in primary sector, which is very natural because primary sector का production इतना नहीं बढ़ा, but tertiary sector का जितना बढ़ा उसके proportion में employment तो उसके करीब भी नहीं गई जितना amount का increase आ गया. तो आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब it doesn't make a lot of sense to us and it is very perplexing in a way that primary sector आज भी जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा sector बना हुआ है. कहीं ना कहीं नहीं, very clearly this is still the largest sector where most of the people are employed, and that is in a way concerning also because 44% of the people who are employed in the primary sector are doing the least contribution, not even 40% of contribution, not even 35% of contribution in GDP. यानी कि इतने सारे लोग मिलकर इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं जीडीपी में, उनका जो इनकम है वो कितना कम होगा, वेयर एज कुछ लोग इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी में, यानी कि उनकी इनकम काफी अच्छी रह रही है. जिनकी अच्छी रह रही है उनके लिए अच्छा है, बट जिनका नहीं अच्छा रह रहा है उसकी वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे कंसर्न्स भी तो पैरेलली हमारे दिमाग में राइज करते हैं. तो क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बन सकती है इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये बन सकता है कि देयर आर नॉट इनफ जॉब्स इन द न्यू सेक्टर्स, इन द राइजिंग सेक्टर्स एज इन. ठीक है, न्यू से हमारा क्या मतलब है? इन द राइजिंग सेक्टर्स. ये जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं इसमें इनफ जॉब है ही नहीं कि लोग यहाँ पे आ सके. तो अब जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो 9 टाइम्स हो गई, 9x हो गई, है ना, 9 गुना बढ़ गई. अगर हम 10 सामान बनाते थे अब हम 90 सामान बनाने लग गए, 90 सामान बनाने लग गए. इंस्टेड ऑफ 10 वी हैव नाउ स्केल्ड अप टू प्रोडक्शन ऑफ द सेम आइटम इन 90, इन द नंबर ऑफ 90. वेयर एज अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी है. मतलब आप ये देखो कि वेयर द प्रोडक्शन हैज गॉन फ्रॉम 1 to 9 और लेट्स से 10 to 90, the employment if was of 10 people, the employment has only increased of 30. There is a huge gap over there. Similarly tertiary sector में भी यही हुआ. tertiary sector में, सर्विस सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर से भी बहुत बड़ा जंप आया. सर्विस सेक्टर में जो है आप ये देखोगे कि ये जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे प्रोडक्शन 1 से 14 टाइम्स बढ़ गई, 14 बन गई, यानी कि 10 थी तो 140 बन गई. वेयर एज अगर यहाँ पे 10 था हमारा एम्प्लॉयमेंट तो ये सिर्फ और सिर्फ 50 बढ़ा, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा गैप देख पा रहे हैं. एंड दैट डेफिनेटली बिकम्स अ ह्यूज कंसर्न फॉर अस. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ओवर हियर दैट वी आर वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइंग? ज्यादातर जो लोग हैं, ऑलमोस्ट हाफ या मोर देन हाफ ऑफ द पीपल, दे स्टिल वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर ओनली. एंड व्हेन वी से प्राइमरी सेक्टर में इट्स नॉट लाइक दे आर डूइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स दैट ओके दे आर प्रोड्यूसिंग सिल्क, a lot of them are producing फिशरीज एंड डेयरी आइटम्स. नहीं, ज्यादातर लोग अगर फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयड हैं, ये जो 50% लोग ऑलमोस्ट जो इसमें भी एम्प्लॉयड है, मोस्ट ऑफ देम जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं. यानी कि that 50% of the population which somewhat is in the field of primary sector, उसमें 90% of the people almost are still indulged into the activity of फार्मिंग, है ना. ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी फार्मिंग में ही अपना पूरा अटेंशन दिए हुए हैं. अभी तक ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में ही आपका काम कर रहे हैं, जो कि आपका पूरे जीडीपी का 1/6 प्रोडक्शन लेकर के आ रहा है. जीडीपी में ये वाला पॉपुलेशन जो है वो कितना प्रोडक्शन लेके आ रहा है? मतलब सोचो 1/6 लेकर के आ रहा है, यानी कि 33 का भी हाफ कितना होता है? 13 इज 13%, 12 to 13% contribution है 50% population का in GDP. Wouldn't that be concerning for us? It should be and it is. तो हमें ये समझ आया कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो कर रही हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, लेकिन the amount of people that they're employing is very very less. Okay, so it simply means that people who are working in the agricultural sector are more than what is required. Otherwise, why would their contribution in the GDP would have been less?
क्यों कम कंट्रीब्यूट कर रहे होते? बढ़ा लेते ना कंट्रीब्यूशन अपना, 12-13% ही सिर्फ, क्यों 50% लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट कर पा रहे? क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे पोटेंशियल तक काम नहीं कर पा रहे। अगर सब लोग अपने फुल पोटेंशियल तक भी काम करते हैं तो कम से कम 1% क्लोज टू 1% समवॉट तो प्रोड्यूस कर पाते हैं इन द जीडीपी। तो 50% वुड हैव एटलीस्ट कंट्रीब्यूटेड टू 35%, 40% टू द जीडीपी, दैट वुड हैव स्टिल मेड सम सेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऐसे हो रहा है जहां पे लोग बहुत लिमिटेड अमाउंट में अपना काम कर रहे हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल को, जितना वो बना सकते हैं पैसा, जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है 3 सेक्टर में वो क्यों बराबर से नहीं हो रही है, क्योंकि देयर आर इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस इन द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। वी सी दैट द आउटपुट व्हिच हैज ग्रोन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। प्रोडक्शन हैज ग्रोन, एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट ग्रोन प्रोपोर्शनली, राइट? हमने देखा कि सर्विस सेक्टर में जो है आपका प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी। लिमिटेड ग्रोथ की वजह से प्राइमरी सेक्टर में ही लोग रह गए। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती तो बच्चे प्राइमरी से जैसे लोग सेकेंडरी टर्शियरी में शिफ्ट हुए और ज्यादा हो जाते, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द वर्कर्स विल स्टिल कीप कंट्रीब्यूटिंग टू जस्ट 1/6 ऑफ द जीडीपी बाय बीइंग ओवरटली एम्प्लॉयड। यानी कि ये एक ऐसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, जितना काम है नहीं, जितनी की जरूरत है नहीं। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कम लोगों में भी इतना प्रोडक्शन कैसे कर पा रही है? क्योंकि वो सबके फुल पोटेंशियल को यूज कर रही है। इसलिए तो कॉर्पोरेट के लोग इतने परेशान रहते हैं, बेचारे कहते हैं कि हम पूरे टाइम काम कर रहे हैं, यानी कि एक बंदे से 2 बंदे का काम कराया जा रहा है, और बेचारे वही प्राइमरी सेक्टर के लोग, एक बंदा आधे बंदे का काम कर रहा है जितना कर सकता था। तो उधर से कम प्रोडक्शन आ रही है और यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन आ रही है। यानी कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स क्या बन गए हैं? अंडर एम्प्लॉयड बन गए हैं, जिसपे अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज अ पर्सन, ठीक है, यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। अंकना मैम कैन एज अ पर्सन डू एटलीस्ट 8 hours of job. In this 8 hours, Ankana ma'am can easily, let's say, produce bakery. Now my sister is able to do the same thing. She is able to, let's say, produce 28 cakes on a daily basis. Okay, that is her potential. क्योंकि वो 28 cakes produce कर पाती है, तो her this thing 3 into 3 900 इसमें ऐड करते, तो इसका my sister has the potential of earning 8400 rupees every day. I go and join her. Now she was already doing the best that she could and she's producing 28 cakes per day. Okay, now my sister and me together start working. Now what is the potential that we have? We have the potential to produce basically this amount of money, or this amount of cake together. Okay, 5 कितना हो गया? 3 53 केक्स टुगेदर। दिस इज द फुल पोटेंशियल, अगर दोनों अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। बट क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था, तो मेरी बहन मेरे साथ रहती है, घर में बेकरी है, उसने कहा कि हे व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, यू कम एंड ज्वाइन मी। ठीक है, मैंने जाकर के उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब पूरे दिन में हम अभी भी समझो कि 28 से 30 केक ही मैक्सिमम बना पा रहे हैं। इतना ही बना रहे हम जितना पहले बना रहे थे, क्योंकि उतनी की डिमांड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्लियरली क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू आइडेंटिफाई? टुगेदर वी हैड द पोटेंशियल टू मेक 53 केक्स। Individually we had a potential of making 25 and 28 cakes. ठीक है, लेकिन as a result of the fact that my requirement was not in her shop, I'm still going and working there, we're still doing the same amount of production that one person would have done otherwise. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? It may look like, but when you come and look at me, would you say that I'm unemployed? आप आकर के मुझे देखकर कहोगे कि मैम आप तो अनएम्प्लॉयड हो, आप तो कुछ काम नहीं करते हो? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। आप कहोगे कि अरे वाह मैम, आप तो इतने सारे केक बना रहे हो, आप इतना अच्छा से काम कर रहे हो। क्योंकि आपको देख करके एक नजरिए में यही नजर आ रहा है बच्चे कि मैम तो एम्प्लॉयड है, मैम तो काम कर रही है। सो होता क्या है कि कुछ वर्कर्स जो है आ जाते हैं उस जगह पे काम करने जहां काम ही नहीं है।
लेकिन क्योंकि उन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने लेबर को यूटिलाइज कर पाते, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाते, वो क्या करते हैं, वो दूसरों की मदद करने लगते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है, तो वो अपने पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। इट मे इन दिस केस लुक लाइक दे आर एम्प्लॉयड, अरे ये तो काम कर रहा है, ये तो रोज खेत पे जाकर खेती कर रहा है, अरे अंकना मैम तो काम कर रही है, वो रोज जाकर के शॉप पे 8-8 घंटे बिताती हैं, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना मेरे नहीं होने पे हो। यानी कि अगर आप इन लोगों को हटा दोगे तो भी उतना प्रोडक्शन होता रहेगा। ये ओवर पॉपुलेशन है। इनको देखने पे हमें एक नजरिए में लगेगा कि ये एम्प्लॉयड तो है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल रिजल्ट को मेजर करोगे तब आपको नजर आएगा कि रिटर्न में रिजल्ट तो कुछ निकल कर आ ही नहीं रहा है, इनके होने ना होने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक दे आर अनएम्प्लॉयड बट एक्चुअली देयर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट मेकिंग एनी चेंज, इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द प्रोडक्शन। सो आर वी क्लियर ओवर योर, डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट? इसीलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप अंडर यूटिलाइज्ड हो, आप यूटिलाइज नहीं हो रहे हो, आप जितना काम प्रोडक्शन में कर सकते थे वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बन गए, अंडर एम्प्लॉयड हो गए। या फिर धोखा लग रहा है, ये एक तरीके से धोखा है, डिस्गाइज है ना, छलावा है, कि आपको लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी काम नहीं आ रही है क्योंकि वो प्रॉपर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करी है, तो उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। This is what we find maximum in the agricultural sector. ठीक है, मेजोरिटी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये क्यों पाया जाता है? 1 सेकेंड। हाँ जी, मेजोरिटी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसलिए पाया जाता है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वहां पे कई सारे लोगों के पास जो है अपनी जमीन नहीं है, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव देयर ओन लैंड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, घर की एक जमीन है, या मान लो किसी के पास छोटी जमीन है, ठीक है, अब छोटी जमीन है, घर में 6 लोग हैं परिवार में, अब उसमें से 2 बच्चे हैं बट 4 बड़े हैं काम करने वाले, उस जमीन पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है काम की। देयर आर 2 पीपल, जस्ट 2 पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग ओवर देयर, दैट्स ऑल। तो वो 2 लोग वहां काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट क्या देखोगे, आप रिजल्ट ये देखते हो कि क्योंकि बाकी 2 लोगों को काम नहीं मिला, बिकॉज द अदर 2 पीपल वर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब एनीवेयर एल्स, दे डिसाइड टू गो एंड जॉइन द अदर 2 पीपल हु वर वर्किंग ऑन द प्लॉट दैट वाज ओन्ड बाय द फैमिली। तो वो वहां पे जाकर के काम करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट लुक्स लाइक टू देम दैट दे आर वर्किंग, बट वो उतने ही पैसे कमा रहे हैं, वो परिवार में उतने ही पैसे आ रहे हैं जितना 2 लोगों के काम करने पे आ रहा था, उतना ही 4 लोगों के काम करने पे भी आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक्सेस लेबर हो जाता है जो कि इनएफिशिएंसी दिखाता है, सब लोग अपने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे होते, ये प्रोडक्शन को इंपैक्ट करता है। सो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन हो गया, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इज मोर देन रिक्वायर्ड और फोर्स्ड टू वर्क बिलो देयर कैपेबिलिटीज, हेंस देयर फुल यूटिलाइजेशन इज नॉट डन। इट मे लुक लाइक दैट employed but truly not 100% utilized. So this is known as underemployment or disguised unemployment. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, this kind of dash is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is also known as dash unemployment. क्या हो गया, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। निष्ठा कुछ कंफ्यूजन हो गई है बच्चे, क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो? प्रोफाइल नेम बच्चे, जब आप लॉग इन करते हो आपका प्रोफाइल आता है ना, जैसे किसी भी ऐप पे आपका प्रोफाइल आता है वैसे इनबाइट पे भी प्रोफाइल आता है, वहां पे जाकर के आप अपना नाम बदल सकते हो। ओके,
So I see only one person got it correct. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. Hence, it is also called disguised unemployment. ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो गया. अब ये समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट से कहने का मतलब ये है बच्चे, दैट देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क, ओके, दे आर एक्टिवली सीकिंग आउट वर्क, बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है, उनको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं. Anybody who's not working will not necessarily be unemployed. A lot of times you may feel like that, but unemployment has certain technicalities to it which is very important to be aware of. For example, tomorrow if I decide that I don't want to work anymore, I need a break of 2 years, मुझे 2 सालों तक कोई काम नहीं करना है, या मैंने पढ़ाई कर ली, कॉलेज खत्म कर लिया और अब मुझे लगा कि यार मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे काम नहीं करना है, ठीक है, तो I chose not to work despite of the fact that I'm qualified to work. When I go to work, I will get a great job, I'll be paid well, I'll work in the service sector, whatever it is. I chose not to work. So I am not unemployed. Okay, there are a lot of people who choose not to work, who choose to be on a break. वो unemployed technically नहीं है, वो ये कह सकते हो आप कि इनका human resource utilize नहीं हो रहा है, या working class के है, वर्किंग सेगमेंट में आते हैं बट यूटिलाइज नहीं हो रहे, बट अनएम्प्लॉयड नहीं है वो. अनएम्प्लॉयड कौन हुआ? अनएम्प्लॉयड वो इंसान होता है हु इज एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क, जो काम ढूंढ रहा है बट उसे काम मिल नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे केस में हमारी बुक में एक लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहां पे हमने देखा कि वो उसकी छोटी सी अपनी 2 हेक्टेयर की जमीन है, उस पर वो नेचुरल तरीके से विदाउट एनी मॉडर्न मेथड्स अपनी फार्मिंग वगैरह करती है. ठीक है, और हर एक कोई काम करता है, मतलब उनके घर में जो है सब लोग काम कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों को मतलब वहां पे उस जमीन में कुछ लोगों में काम चल जाएगा उनके परिवार के, बट बाकी लोगों को कहीं और काम नहीं मिल रहा है, तो वो आकर के लक्ष्मी के साथ ही काम में लग जाते हैं और अपना लेबर एफर्ट लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 2 लोग खाली बैठे हुए खेत में ऐसे हाथ बंद करके कि अच्छा चलो देखते हैं लक्ष्मी काम कर रही है, नहीं, सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि लक्ष्मी और सिर्फ उसके हस्बैंड अगर काम कर रहे होते और बाकी भाई बच्चे काम नहीं कर रहे होते, तो भी अगर उन्होंने 200 केजी गेहूं ग्रो कर पाना था, इन लोगों के काम करने के बावजूद वो 200 केजी ही गेहूं ग्रो कर पा रहे. अगर उन्होंने पहले 12,000 रुपए कमाए थे तो अभी भी वो 12,000 रुपए कमा पा रहे. सेम सिचुएशन. तो इस काइंड ऑफ सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो हिडन होती है कॉन्ट्रास्ट में टू एनी अदर जॉब, जो क्लियरली अदरवाइज विजिबल है एज अनएम्प्लॉयमेंट, वो साफ साफ दिखती है, इसीलिए इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. ठीक है, ओके. नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आपको सवाल आता है कई बार कि अगर आप कहीं के सरपंच हो, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अगर आप कहीं के सरपंच हो या आपको कुछ अपॉइंट कर दिया जाए, आप कैसे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, आप कैसे वहां की सिचुएशन बेटर कर सकते हो, ये सवाल पूछा जाता है. ठीक है, तो आपको यही सारी सजेशंस जो है वहां पे देने हैं. ओके, ना अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे हटाया जा सकता है? एक बहुत सिंपल एग्जांपल, लक्ष्मी का भी हमने एग्जांपल लिया कि लक्ष्मी के फैमिली में अगर मान लो 6 लोग थे, 4 लोग थे, 2 लोगों की जरूरत उनके अपनी जमीन पे काम करने की थी, बाकी 2 लोगों को जॉब नहीं मिला तो वो भी वहां पे काम कर रहे थे. ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की कहानी हो गई. वहीं पे अगर मान लो कोई लैंडलॉर्ड है जो उनके यहाँ फार्मिंग अपनी जमीन पे शुरू करता है, उनको अब लेबर्स की जरूरत है, तो वो लक्ष्मी के पास लक्ष्मी को बुलाकर कहते हैं कि अपने घर से 2 लोगों को भेज देना मेरे यहाँ काम करने के लिए, मेरे यहाँ 2 लोगों की जरूरत है. तो लक्ष्मी या तो खुद अपने हस्बैंड के साथ जाती है या लक्ष्मी किसी को अपने घर से 2 लोगों को भेज देती है, यानी कि वो 2 लोग जो अब उनके घर पे की जमीन पे काम करने की जरूरत है वहां करें, बाकी के बचे 2 एक्स्ट्रा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले लोग थे जो वो अब उस लैंडलॉर्ड नए लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने लग जा रहे हैं, जहां से उनको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है. यहां से भी अगर वो थोड़ी कम इनकम कमा रहे हैं देन दे कुड हैव, इट डजंट मैटर, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड नाउ देयर वेजेस आर जस्टिफाइड. अब उनकी पोटेंशियल बेटर यूज हो रही है, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो रही है, तो अब वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी. तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट बच्चे सबसे ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलती है. आपको और भी जगह पे देखने को मिलेगी, जैसे कि कैजुअल वर्किंग का होता है ना, जो लोग रोज लेबर करने जाते हैं, रोज काम ढूंढते हैं. आपके शहर में भी होता होगा, देयर मस्ट बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस जहां पे रोज बैठ करके जो है लेबर्स वेट करते होंगे कि उनको हायर किया जाए, ठेकेदार आकर के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनको लेकर जाते होंगे. कई बार कुछ लेबर्स को काम नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं,
चले जाते हैं किसी के साथ कि चलो मैं तुम्हारी मदद करा दूंगा, आज वैसे मुझे दिन के 350 रुपए मिलते हैं, तुम मुझे 50-70 रुपए दे देना, बिकॉज दिस इट्स बेटर टू अर्न समथिंग देन नथिंग, एंड तुम्हारा काम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे दो लोग काम पे लगे, इट मे लुक लाइक कि अच्छा बोथ ऑफ देम आर वर्किंग एंड दिस इज एन अर्बन सेक्टर, लेकिन दोनों की कमाई उतनी ही हो रही है मिलकर के जितना अकेले होती। तो ये सारी चीजें आपको आराम से दिख सकती हैं कि वो पूरा दिन कमाएंगे, पूरा दिन काम करेंगे लेकिन कमाएंगे बहुत कम, जितना शायद सिर्फ एक बंदा ही कर रहा होता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट राइज होता है दैट हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। और इतने सारे डिस्कशन के बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर या इन सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांगली रह रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या छोटी जमीन है, जैसे लक्ष्मी क्या कर रही थी, नेचुरल तरीके से ही कर रही थी कल्टीवेशन, रेन पे डिपेंड कर रही है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड कर रही है। अगर उसे लोड्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो बेटर इनकम के साथ मॉडर्नाइज मेथड्स को यूज कर सकती है और 200 केजी वीट के जगह शी कैन प्रोड्यूस मे बी 300-350 केजीज ऑफ वीट ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। हर मनी इनकम विल इंक्रीज। तो अगर किसी एक बंदे को काम नहीं भी मिल रहा है तो फिर भी प्रोडक्शन इतनी हो पा रही है कि पूरे परिवार का खर्चा बेटर तरीके से चल पाएगा, या वो नई जमीन खरीद पाएगी लोन लेकर के, और लोन के चक्कर में ट्रैप में नहीं फंसेगी जहां भर भर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, हम ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही अगर ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दे कि फार्मर को अपनी तरफ से पैसा ज्यादा लगाना ना पड़े, तो जो गरीब फार्मर्स है, जो बहुत लार्ज स्केल फार्मर्स नहीं है, वो उनका बेटर प्रोडक्शन होगा, बेटर प्रॉफिट हो पाएगा। हम ज्यादा बेटर अगर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। उन सारी चीजों में जो पैसे जा रहे हैं, जो उनकी चिंता हो रही है, जो अनाज बर्बाद हो जा रहे हैं, प्रोडक्शन की जगह प्रॉफिट की जगह लॉस हो जा रहा है, वो बेटर हो जाएगा। अगर हम नए स्कूल खोलते हैं तो लोग ज्यादा एडुकेटेड होंगे, तो फार्मिंग की जगह वो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स के लिए रेडी होंगे, सर्विस सेक्टर के लिए रेडी होंगे, ज्यादा बेटर उसमें काम कर पाएंगे। प्लस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह बेटर कर देते हो तो लोग उसमें काम करने लग जाएंगे, तो प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करेंगे एंड मोर पॉपुलेशन विल मूव टुवर्ड्स देयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। हम अगर टूरिज्म वगैरह प्रमोट करते हैं तो ज्यादा लोग फिर सर्विस, हम क्या करें, सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट किया, अब ज्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, कोई होटल चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई गाड़ियां चला रहा है, ड्राइवर बन रहा है। तो जब टूरिस्ट आते हैं, आप ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ फार्मिंग पे नहीं रह जाएगी और जनरेशन हो जाएगी काम की इन द सर्विस सेक्टर। वैसे ही हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ाते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, तो वो हेल्थ तो पॉपुलेशन की अच्छी रखता ही है, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को बेटर करता है, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ न्यू वर्क गेट्स डन। ठीक है, आप हॉस्पिटल ज्यादा बनाओगे, आपको डॉक्टर ज्यादा चाहिए होंगे, लोग ज्यादा डॉक्टर बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ गई। आप ज्यादा हॉस्पिटल बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हॉस्पिटल का, तो लोग वहां आकर के काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर गांव में हम रोड्स का कंस्ट्रक्शन, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, स्कूल का कंस्ट्रक्शन करें, तो कितने लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा, तो वो एम्प्लॉयड रहेंगे, प्लस जो लोगों को उससे फायदा होगा, उससे सोसाइटी में डेवलपमेंट आएगी। और ये सब एक साइकिलिक फॉर्म में चलता है। इंडस्ट्रीज को अगर हम सेमी रूरल एरिया में प्रमोट करते हैं तो लोगों की डिपेंडेंसी सिर्फ फार्मिंग पे जो है आज के डेट में वो हट करके शिफ्ट हो जाएगी, और लोग वहां पे जाकर के लेबर की तरह बाकी फिक्स तरीके से काम करने लगेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने लगेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राइट टू वर्क मनरेगा दिया गया है। 2005 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया था। बच्चा, मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में इसको लाया गया था। नरेगा या मनरेगा दोनों ही नामों से ये जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, 100 डेज की गारंटी दी गई। बोला गया कि 100 दिन आपको कम से कम हम पूरे साल में एम्प्लॉयड तो रखेंगे ही रखेंगे, एंड जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट फाइंड जॉब्स इन गवर्नमेंट रन गवर्नमेंट के रन प्रोजेक्ट्स में, तो आपको कम से कम 100 दिन की हम कॉम्पनसेशन देंगे। यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन फिर भी सोर्स ऑफ इनकम आता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने अलाउंसेस देना शुरू किया, अलग अलग तरह के वर्क को प्रायोरिटाइज किया जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। इससे क्या हुआ, रूरल एम्प्लॉयमेंट हटी और बूस्ट हुई लैंड प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ बहुत सारी औरतों को स्पेशली इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है, जिससे और ज्यादा बूस्ट मिल रहा है इकोनॉमी ऑफ विलेजेस को। ठीक है, तो अब आपको फुल फॉर्म बताना है मनरेगा का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ग्रुप एक्ट, गारंटी एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट और मेनका गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्लीज क्विकली गो अहेड एंड डिफाइन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा।
Superb. I guess everyone knows this. This will be Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. ठीक है. अब बच्चे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं बहुत डिटेल में आज के सेशन में नहीं ड्वेल करूंगी बिकॉज द टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का. ठीक है. अब मैं एक बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, आप बहुत या मैं बहुत अनऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, आप बहुत अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हो. इसका मतलब क्या हुआ? Somebody who works in a very systematic way, in a structured way, will be referred to as organized, who has a system, who has a structure, will follow that pattern. Whereas कोई बहुत बिखेर के काम करता है, जैसे तैसे काम करता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है. हमने देखा है कि ऑर्गेनाइज्ड इंसान जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है क्योंकि उनका सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है काम करने का. और अनऑर्गेनाइज्ड का जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. ठीक है. काम होगा कभी कभी नहीं होगा. ठीक है. या फिर आप अच्छे से वो नहीं कर पाओगे, रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाओगे, या सिस्टम जो है बहुत क्योटिक होगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन, राइट. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी एग्जैक्टली ऐसा होता है. जैसे कि आपने कई सारे लोगों को देखा है काम करते हुए जहां पे देयर आर पीपल हु हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, हु हैव सर्टेन बेनिफिट्स, हु हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस इन देयर ऑफिसेस. ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैटेगराइज होता है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो क्या हो जाएगा? जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं रखा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. ये क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली हम जैसे नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में, सिमिलरली सिस्टम, रूल्स और एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी हम एक नई कैटेगराइजेशन करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की. जिन कंपनीज और प्लेसेस में क्या होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, अश्योर्ड वर्क होता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट के लॉज जैसे कि लेबर लॉज होते हैं, ताकि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप अपने कंपनी पे केस करो, आपके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, आपका हक नहीं दिया जा रहा है, योर राइट्स आर नॉट बीइंग गारंटीड. ठीक है. ये ऐसी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट योर कंपनी. तो ये सब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी. बट फॉर दैट द कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, राइट. तो फैक्ट्री एक्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट होता है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेबर लॉज होते हैं. वो सब कहाँ मिलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ठीक है. तो वर्कर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको बेनिफिट्स मिलती है कि जैसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, पेड लीव्स होगी. मुझे जैसे आज छुट्टी चाहिए, मेरी तबियत ठीक नहीं है, तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे इस बात के, मुझे आज के भी पैसे मिलेंगे, मैं छुट्टी भी ले सकती हूँ. मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, आई एम सपोज टू वर्क 8 आवर्स बट आई डिसाइडेड टू वर्क 10 आवर्स और आई एम रिक्वायर्ड टू वर्क 12 आवर्स. तो क्या होंगे? मुझे वो एक्स्ट्रा 4 घंटे की कॉम्पनसेशन मिलेगी, या तो उसके बदले उसकी हाफ डे की छुट्टी मिल जाएगी या थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे. तो ये सब जो बेनिफिट्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है. तो इसमें क्या हो जाएगा? पेड लीव, हॉलिडे पे, पीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंसेस, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर ऑफिस प्लेस, ये सब कुछ मिलता है. कई सारे लोगों को रिटायर करने पे पेंशन भी मिलता है. सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी कई बार अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. आजकल हम देखते हैं ना कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, राइट. तो क्या हो रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी जो है दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एंड वहां पे भी गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होती है. तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में जिस जगह गवर्नमेंट रूल्स फॉलो हो रही है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है और बेनिफिट्स मिल रहे हैं जॉब के, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आई एम गोना पॉज द सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. विल डू वन फाइनल लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द सेशन. हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है अलॉन्ग विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. So what is defining characteristic of organized sector? Irregular terms of employment, absence of government registration, formal processes and procedures, or no benefits for workers. So guys, it will be formal यानी कि ऑफिशियल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स. जब ये सारी चीजें होती हैं तो जो सेक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड वंडरफुल एवरीवन फॉर गेटिंग इट राइट. श्लोक, ईश्वरी, तुषार, सुपर.
So with this, guys, we have come to the end of the session. Thank you everyone for being here. If you, in case of any query, any questions, do feel free to get it clarified and ask. Otherwise, I'm going to end the session now. And let's quickly summarize what we have done. तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जो है इक्वली प्रोपोर्शनली जनरेट नहीं हुई है सारे सेक्टर्स में, जो कि जीडीपी के कंट्रीब्यूशन से अलाइंड नहीं है. और फिर हमने ये भी पढ़ा कि आपकी उसके पीछे की वजह हमें समझ आ गई, और विच ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड. एंड वी सॉ दैट द ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस द सेक्टर्स ऑफ जॉब्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अंडर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड को डिटेल में हमने समझा कि इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयमेंट गेट्स assured and the employee gets assured work. Cool. So I'll see you guys in the next session, and in the next session we will talk about that government is doing a lot of things to protect the workers in unorganized sector. What are the steps that they are taking, or are they not taking any step? Does that mean government is lazy, or they have done something that we have not figured out? Are they doing some sneaky business? Everything will be answered in the next session. Do not forget to practice some questions from the topic that we have done. Do explore all the apps, and I will see you guys in the next session. If you have any doubts and queries, this is where you get it clarified, or your Telegram channel है, ये लिंक और कोड है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ सेशन जो है वो खत्म हो चुका है. थैंक यू सो मच. डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग. अस्सलाम वालेकुम, बाय, चाओ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सब्सक्राइब, stay tuned, do not forget to like, and I'll see you in the next session. Till the next time, assalamu alaikum, bye bye, ciao, take care, and till the next time, stay tuned and keep in bye bye.